شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ امام علی کا وہ مکتوب جس میں امام علی نے امام حسن کو نصیحت کی۔ اگر میں یہ کہوں کہ نہج البلاغہ کے اندر حکمت سے بھرپور طویل ترین خطبہ یا مکتوب کون سا ہے تو یہ کہنا درست ہوگا کہ نہج البلاغہ کے زیادہ تر اقوال اسی مکتوب سے لیے گئے ہیں۔ اس مکتوب میں امام علی نے اپنی زندگی کا سارا تجربہ، یا میں یہ کہوں کہ پوری زندگی کا جو تجربے کا سمندر ہے، اس کو کوزے میں بند کر دیا ہے بنام امام حسن علیہ السلام، اس باپ کی طرف سے جو فنا ہونے والا ہے، وقت کا معترف، زندگی سے پیچھا چھڑانے والا، زمانے کے آگے ہتھیار ڈالنے والا، دنیا کے منہ پر اس کی مذمت کرنے والا، مرنے والوں کے گھروں کا ساکن اور کل ان کے گھر سے رخصت سفر باندھنے والا ہے، اس بیٹے کے نام جو ہاتھ نہ آنے والی شے کا امیدوار، ہلاک شدگان کی راہ پر گامزن، روگوں کا نشانہ اور گنے چنے دنوں کا مرہون، مصائب کا شکار، دنیا کا بندہ بے نام، مال ناکارہ کا تاجر، تقدیر کا قرضدار، موت کا اسیر، افکار کا حلیف، غموں کا ہم نشین، آفتوں کا نظر بد، خواہشات کا افکندہ اور مردوں کا جانشین ہے۔ اما بعد، میں نے اپنی طرف سے دنیا کے پیٹھ پھیرنے، زمانے کے منہ زور گھوڑوں کے بے قابو ہو جانے اور آخرت کی اپنی طرف بڑھتے آنے پر جتنا غور و فکر کیا ہے، اس سے میں اس واضح نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اپنے سوا کسی دوسرے کا ذکر اور اپنے پسماندگان کی فکر کرنے سے باز رہوں۔ مگر اب چونکہ میں اس مقام پر ہوں جہاں خود اپنی فکر نے مجھے اوروں کے غم و اندوں سے الگ کر لیا ہے، لہٰذا میری رائے نے میرا رخ بدل دیا اور مجھے اپنے ارادے سے منحرف کر دیا اور صاف صاف دکھا دیا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ چنانچہ مجھے اس حقیقت واقعہ تک پہنچا دیا جس میں مزہ کا دخل نہیں، اور اس سچائی سے ہمکنار کر دیا جس میں جھوٹ کا شائبہ تک نہیں، اور میں نے دیکھا کہ تم میرا جز ہو، بلکہ کلی طور پر وہی ہو جو میں ہوں، یہاں تک کہ کوئی مصیبت اگر تم پر آئی تو گویا مجھ پر آئی، اور موت اگر تم پر آئی تو گویا مجھے آئی۔ ان حالات میں مجھے تمہاری بھی اتنی ہی فکر ہوئی جتنی خود اپنی ہے، چنانچہ میں نے تمہارے نام اپنا وصیت نامہ لکھ دیا، بائیں طلب کہ ہر حالت میں تمہارا مددگار رہے، چاہے میں تمہارے پاس رہوں یا نہ رہوں۔ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کے احکام کے پابند رہو، اس کی یاد سے اپنے کو آباد رکھو اور اس کی رسی کو تھامے رہو، اور بھلا کون سی رسی ہے جو اس سے زیادہ مضبوط ہو جو تمہارے اور اللہ کے مابین موجود ہے، بشرطی کہ تم اسے تھام رکھو، اپنے دل کو پند و نصیحت سے زندہ اور ترک لذات سے مردہ رکھو کہ اسے از لذات کا احساس ہی نہ رہے، قوت یقین سے قوی رکھو اور نور حکمت سے منور، موت کی یاد سے رام کرو اور فنا کے اقرار پر قائم رکھو، دنیا کی آفات ناگہانی اس کی آنکھوں کے سامنے رکھو، اور زمانے کے حملے اور گردش لیل و نہار کی برائی سے ہوشیار رہو، گزرے ہوئے لوگوں کے واقعات اس کے سامنے لاتے رہو اور اپنے پیشرووں کی مصیبتیں یاد دلاتے رہو، اور خود ان لوگوں کے گھروں اور آثار قدیمہ کو جا کر دیکھو اور غور کرو کہ انہوں نے کیا کچھ کیا، کہاں سے چل نکلے، کہاں اترے، کس منزل پر جا لگے۔ تم دیکھو گے کہ وہ اپنے پیارے دوستوں سے بچھڑ کر چلے اور دیار غربت میں جا اترے ہیں، اور ایسا لگتا ہے جیسے تھوڑی ہی دیر بعد تمہارا حشر بھی انہی کا ایسا ہوگا۔ لہٰذا ابھی سے اپنا ٹھکانہ درست کر لو اور دنیا کے بدلے اپنی آخرت نہ بیچو، اور جس بات کی پوری معرفت نہ ہو اس کے بارے میں کچھ نہ کہو، اور جو بات تم سے پوچھی نہیں گئی اس کے بارے میں گفتگو مت کرو، اور جب بھٹک جانے کا اندیشہ ہو تو راستے سے قدم روک لو، کیونکہ راستہ کھو جانے کی حیرت کے وقت قدم روک لینا پرخطر راستے پر چلنے سے بہتر ہے، اور دوسروں کو نیکی کی راہ لگاؤ کہ نیکوں میں شامل رہو، اور دست و زباں سے برائی کو برا بتاتے رہو، اور جہاں تک ہو سکے برائی کے مرتکب سے کوسوں دور رہو، خدا کی راہ میں ایسا جہاد کرو کہ جہاد کا حق ادا ہو جائے، اور دیکھو اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے متاثر نہ ہونا، اور حق جہاں بھی ہو وہاں تک پہنچنے کے لیے سختیوں میں کود پڑو اور دین کا علم پوری کوشش سے حاصل کرو، اپنے نفس کو اس بات کا عادی بنا لو کہ وہ ناقابل برداشت باتوں کو صبر سے برداشت کرتا رہے، اور یاد رکھو حق کی راہ میں صبر و برداشت ہی بہترین خلق ہے، اور ہر کام میں اپنے نفس کو اللہ کی پناہ میں دے دو، کیونکہ ایسا کر کے تم اسے ایک محفوظ پناہ گاہ اور زبردست محافظ کے سپرد کر دو گے۔
सवाल करो तो सिर्फ अपने परवरदिगार से करो, क्योंकि देना और ना देना उसी के कब्ज़ा कुदरत में है। और इस्तिखारा अल्लाह से तलब खैर कसरत से करते रहो, और मेरी वसीयत को खूब समझ लो और इसकी खिलाफ वर्जी हरगिज़ ना करना, क्योंकि सबसे अच्छी बात वही है जो नफ़ा पहुँचाए। और मालूम रहे कि इस इल्म में कोई भलाई नहीं जो नफ़ा ना दे सके, और ऐसे इल्म से कोई फ़ायदा नहीं उठाया जा सकता जिसका सीखना ही ठीक ना हो। जाने पिदर, मैंने जब देखा कि उम्र रसीदा हो गया हूँ और समझा कि मेरी ज़ईफ़ी और कमज़ोरी बढ़ती जा रही है, तो मैंने तुम्हें कबल अज़ वक्त ही अपनी वसीयत लिख दी, और इससे पहले कि अपना माज़ी अल ज़मीर तुम तक पहुँचाए बगैर ही मौत का शिकार हो जाऊँ, मैंने इस वसीयत के चंद बुनियादी उसूल बयान कर दिए, ताकि ऐसा ना हो जिस तरह मेरे जिस्म में नुक्स आ गया है, कहीं अकल भी कमज़ोर हो जाए, या मुबादा मेरी वसीयत से पहले ही तुम पर बाज़ नफसानी ख्वाहिशात और दीनवी फितनों का तसल्लुत हो जाए, जिसके नतीजे में तुम राम ना करदा सरकश घोड़े की तरह बेकाबू हो जाओ। और याद रखो, जवान नौखेज़ का दिल खाली ज़मीन की तरह होता है, जिसमें कोई सा बीज डाला जाए कबूल कर लेती है। लिहाजा पेश तराजी कि तुम्हारा दिल सख्त हो जाए और तुम्हारा जहन दूसरी बातों में मशगूल हो जाए। मैंने तुम्हारी अदब आमूजी में पहल कर दी, ताकि तुम अपनी पुख्ता राय की बदौलत उन बातों को कबूल करने के लिए आमादा हो जाओ जिनकी तलाश और आजमाइश से अहले तजर्बा ने तुम्हें बेनियाज कर दिया है, और इस तरह तुम्हें तलाश की जहमत और तजर्बे की मुश्कों से बचा लिया है, और वो बातें तुम्हारे पास खुद चलकर आ जाएं जिनकी तलाश में हम चलकर जाया करते थे, और वो सब कुछ तुम पर रोशन हो जाए जो शायद हमारी निगाहों से भी ओझल रह गया हो। ए नूरे चश्म, अगरचे मुझे अगले लोगों की उम्र तो नहीं मिली, ताहम मैंने उनके अमाल पर नज़र की और उनके हालात पर गौर व फिक्र किया है, और उनके छोड़े हुए निशानात को ऐसे करीब से देख भाला है कि गोया उन्हीं का एक हो गया हूँ। बल्कि जहाँ तक उनके हालात मुझे पहुँचे हैं, ऐसा लगता है जैसे मैंने उनके अव्वल से लेकर आखिर तक के साथ ज़िंदगी बसर की है, और आखिर में इन हालात की छानबीन करके साफ को ना साफ और मुफीद को मुज़र से अलग करके पहचान लिया। चुनाचा हर बात का निचोड़ निकाल कर बतौर खुलासा तुम्हारे सामने रख दिया, और हर पहलू की खूबियां ढूंढ ढूंढ कर तुम्हारे लिए चुन ली, मगर खामियों का रुख तुमसे फेर दिया। और चूंकि मुझे तुम्हारी ऐसी ही फिक्र है जैसी एक शफीक बाप को होती है, नेज़ तुम्हारी तालीम और तरबियत मकसूद थी, लिहाजा मैंने मुनासिब समझा कि यह तालीम और तरबियत का काम उस वक्त हो जबकि तुम नौ उम्र हो और हुदूद दहर में नए नए कदम रख रहे हो, जबकि तुम्हारी नीयत बेलौस और दिल साफ है। और यह भी मुनासिब समझा कि तुम्हारी तालीम और तरबियत की इब्तिदा किताब खुदा और उसकी तावील, इस्लाम के शरअ व अहकाम और इसके हलाल व हराम की तालीम से करूं, और तुम्हें इस तालीम के खिलाफ किसी और तरफ तजावुज़ ना करने दूं। फिर अंदेशा हुआ कि लोगों के अकायद व आरा का इख्तिलाफ कहीं तुम्हें भी उस तरह शुबह में ना डाल दे जिस तरह लोगों को शुबह में डाल रखा है। चुनाचा इसके बावजूद कि तुम्हें इस अंदेशे से खबरदार करना मुझे पसंद ना था, फिर भी इस पर जोर देना मुझे इस बात से कहीं ज़्यादा पसंद है कि तुम्हें उन हालात के हवाले कर दूं जिनमें तुम्हारी हलाकत से बेखौफ नहीं रह सकता। उम्मीद है कि अल्लाह तुम्हें राह रास्त पर चलते रहने की तौफीक अता करेगा और मंजिल मकसूद तक पहुंचा देगा। बस मैंने अपनी इस वसीयत की जिम्मेदारी तुम पर डाल दी है। जाने पिदर, याद रखो कि मेरी वसीयत की जिन बातों पर तुम्हें सख्ती से अमल पैरा रहना है, उनमें से मेरी महबूब तरीन बातें ये हैं: अल्लाह की गिरफ्त से बचने के लिए उसके अम्रो नहीं की पाबंदी, जो बातें अल्लाह ने तुम पर फ़र्ज कर दी हैं उनमें कमी बेशी ना करना, जिस राह पर तुम्हारे पेशरो आबाद व अजदाद और तुम्हारे घराने के सालेहीन चलते रहे हैं उस पर साबित कदमी से गामजन रहना, क्योंकि उन्होंने कदम उठाने से पहले अपने इक़दामात के लिए गौर व फिक्र को कभी नज़रअंदाज नहीं किया। जैसे तुम भी अपनी जगह गौर व फिक्र वाले हो, फिर इस गौर व फिक्र ने उन्हें इस फैसले तक पहुंचाया कि वो उमूर मारूफ पर कारबंद रहें, मगर उन कामों से बाज रहें जिन पर वो शरन मुकल्लिफ नहीं है। लेकिन अगर तुम्हारा नफ्स इस बात पर अड़ जाए कि तुम उन बुजुर्गों की तरह ज़ाती तौर पर मालूमात हासिल किए बगैर इन बातों को कबूल ना करोगे, तो तुम्हें इन बातों की तहकीक समझने और इल्म हासिल करने के तौर पर करनी चाहिए, ना कि शुबहात के दलदल में फंसने और बहस व तकरार में गालिब आने के जरिए। और इन बातों में गौर व फिक्र करने से पहले अपने खुदा से खुलकर मदद मांगो और अपनी तौफीक के बारे में उसकी तरफ रुजू करो, और ऐसे हर धब्बे को अपने दामन से छुड़ा लो जो तुम्हें शुबा की कीचड़ में डाल दे या तुम्हें गुमराही के हवाले कर दे। बस जब तुम्हें यकीन हो जाए कि तुम्हारा दिल साफ होकर काबू में आ चुका है
और तुम्हारी राय फैसला कुन मरहले पर पहुंच गई है और इस बारे में तुम्हारे अज़ाइम एक वाहिद मकसद बन गए हैं, तो इन बातों पर गौर करो जो मैंने तुम्हारे लिए खोल कर बयान कर दी हैं। और अगर इस पर भी हस्ब ख्वाहिश, जमीयत खातिर और फिक्र व नज़र का इत्मीनान हासिल ना हो तो समझ लो कि तुम शबकूर ऊँटनी की तरह मारे मारे फिर रहे और तारीकियों की दलदल में जा फंसे हो। और जो शख्स अंधेरे में टामक टोइयां मारता है और या वो गोई करता फिरे, वो दीन का तालिब नहीं हो सकता। और इस खब्त व खल्त से किनारा गिरी ही ज्यादा करीने अक्ल है। तो बेटा, मेरी वसीयत को समझो और यकीन रखो कि जिंदगी उसी के कब्जे में है जिसके कब्जे में मौत है, और जो पैदा कर सकता है वो मार भी सकता है, और दूसरी बार वही जिंदा करने वाला है जो पहली मर्तबा फना करने वाला है, और जो आजमाइश में डालने वाला है वही उससे निकालने वाला भी है। और याद रखो कि अल्लाह ने दुनिया को नेमत व आजमाइश, आखिरत की जजा और अपनी मशीयत और हमारे इल्म से बाहर है कि जिस करारगाह पर ठहरा दिया है उसके सिवा किसी ठिकाने पर ठहर नहीं सकती। लिहाजा इन बातों को समझने में अगर कोई मुश्किल पेश आए तो उसे अपनी लाइल्मी पर महमूल करो, क्योंकि पहले तुम्हें नादान पैदा किया गया, इसके बाद आलिम बनाया गया, और बहुत से उमूर ऐसे हैं जिनकी हिकमत तुम्हें मालूम ना थी। इनके बारे में तुम्हारी अक्ल चकरा जाती है और निगाह फेर खा जाती है, फिर बाद में वही बातें तो पर वाज़िया हो जाती हैं। लिहाजा इसी का दामन थाम रखो जिसने तुम्हें पैदा किया, रिस्क दिया और नुक्स से दुरुस्त बनाया, और तुम्हारी इबादत इसी से मखसूस, तुम्हारी रग़बत उसी की तरफ और तुम्हें खौफ उसी का रहना चाहिए। फर्जंद अजीज, यकीन रखो कि किसी भी नबी ने अल्लाह की तरफ से नबूवत का पैगाम ऐसे अंजाम नहीं दिए जैसे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंजाम दिए हैं। लिहाजा इन्हीं को अपना राय, सहरा से आबो गया में 4 से पानी की तलाश करने वाला और अपनी निजात का कायद मानने पर राजी रहो। चुनाचा मैंने तुम्हारी खैर ख्वाही में कोई कसर उठा नहीं रखी, और इंतहाई कोशिश के बावजूद भी तुम अपनी सोच विचार की उस हद तक ना पहुंचोगे जहां तक तुम्हारे लिए सोचने में मेरी नजर पहुंच गई है। ए नूरे नजर, गौर करो कि अगर तुम्हारे परवरदिगार का कोई शरीक होता तो उस शरीक के पैगंबर भी तुम्हारे पास आते और उसके मुल्क व सल्तनत के आसार तुम्हें दिखाई देते और उसके अफ़ाल व सिफात को तुम जरूर पहचान लेते। ऐसा नहीं है, बल्कि हक यह है कि वो बिला शिरकत गैर से एक ही खुदा है, जैसा कि उसने अपना वस्फ खुद बयान फरमाया है। उसके इक़्तिदार में कोई इसका मद्दे मुकाबिल नहीं हो सकता, ना उसे कभी जवाल आ सकता है ना आया। बेशक वो अव्वल है जो तमाम मखलूक अशिया से पहले मौजूद था, मगर उसकी अपनी कोई इब्तिदा नहीं, और आखिर है जो तमाम अशिया की फना के बाद मौजूद रहेगा, लेकिन इसकी अपनी कोई इंतहा नहीं। इसकी शान इससे कहीं बालातर है कि कल्बो नज़र के अहाते में लाकर उसकी रबूबियत को साबित किया जाए, और तुम जब सब कुछ समझ जाओ तो अपनी कदर की कमी, ताकत की किल्लत, बेचारगी की कसरत और अपने परवरदिगार का मोहताज होने की अजमत के पेश नज़र उसकी अताअत, उसकी सज़ा से डरो और उसके गज़ब के खौफ की तलब में वो काम करो जो तुम्हारे जैसे फर्जंदे सादतमंद के शायाना शान हो, क्योंकि उसने तुम्हें हुक्म दिया है तो सिर्फ हुस्न अमल का और रोका है तो महज बदामालियों से। ए राहत जान, मैंने तुम्हें दुनिया और उसके हाल, जवाल और इंतकाल से आगाह कर दिया है, और आखिरत और अहले आखिरत के लिए पहले से तैयार करदा जज़ा और सज़ा की भी खबर दे दी है, और दुनिया और आखिरत दोनों के बारे में तुम्हारे लिए मिसालें पेश कर दी हैं ताकि तुम उनसे इबरत हासिल करो और उनके कदम पर कदम रखते हुए चलो। जिसने दुनिया को छान फटक कर खूब पहचान लिया है, उसकी मिसाल उन मुसाफिरों की सी है जिन्हें तहत ज़दा मंजिल पर उतरना रास ना आया, तो उन्होंने एक सरसब्ज मंजिल और शादाब मुकाम का कसद कर लिया। चुनाचा उन्होंने रास्ते की मुशक्कत, दोस्तों की जुदाई, सफ़र की दुश्वारी और खाने की नागवारी को सिर्फ इसलिए बर्दाश्त किया कि अपने घर की कुशादगी और ठहरने की मंजिल तक पहुंच जाएं। लिहाजा उन्हें इन तकालीफ में किसी का दुख महसूस नहीं होता, और इस राह में किए हुए किसी खर्च को तावान नहीं समझते, और जिस लगन ने उन्हें मंजिल के करीब और अपने मुकाम से हमकिनार कर दिया है, उससे ज्यादा प्यारी उन्हें कोई चीज नहीं रहती। और उस आदमी की मिसाल जो दुनिया का फरेब खोरदा है, उन लोगों की सी है जो एक सरसब्ज मंजिल पर मुकीम थे और उसे मुवाफिक ना पाकर एक कहत ज़दा मुकाम की तरफ चले गए, तो अब उन्हें इससे ज्यादा नागवार और उनके लिए नजदीक इससे बढ़कर घनौनी सूरत हाल क्या होगी कि वो अपने साबका माहौल को छोड़कर अचानक इस मंजिल की तरफ चल खड़े हुए जहां इनका ठिकाना ना होगा। बेटा, तुम मामलात में अपने आप को अपने और
दूसरों के माबैन एक मीज़ान, मयार या पैमाना बना रखो। बस दूसरों के लिए भी वही कुछ पसंद करो जो अपने लिए पसंद करते हो, और जो चीज़ तुम्हें नापसंद हो उसे दूसरों के लिए भी नापसंद रखो। जिस तरह तुम नहीं चाहते कि कोई तुम पर जुल्म करे, इसी तरह तुम भी किसी पर जुल्म ना करो। जिस तरह दूसरों से हुस्न सुलूक के ख्वाह हो, इसी तरह दूसरों से हुस्न सुलूक रवा रखो। दूसरों की जिस बात को बुरा जानते हो, अगर अपने में हो, अपनी जिस बात से लोगों को खुश रखना चाहते हो, लोगों की उस बात से खुद भी खुश रहो। जो बात जानते नहीं हो उसे जबान पर ना लाओ। अगर तुम्हारी मालूमात कम हो तो तुम चुप रहो, और जो कुछ अपने बारे में सुनना नहीं चाहते वो दूसरों के बारे में भी मत कहो। और याद रखो कि खुद पसंदी हक अंदेशी की जिद और अकल की आफत है। लिहाजा रिस्क हलाल कमाने में खूब कोशिश करो, मगर दूसरों के खजानची ना बनो। अगर राय रास पर गामजन रहने की तौफीक हासिल हो जाए तो जहां तक हो सके अपने परवरदिगार के हुजूर आजिजी से झुक जाओ, और आगाह रहो कि तुम्हारे आगे एक दूर दराज और जानजूखों का रास्ता है। और यह भी याद रहे कि इस रास्ते में तुम्हारे लिए ज़रूरी सामान सफ़र की तलाश नागुज़ीर है, और बकदरे ज़रूरत ज़्यादा राह का अंदाज़ा कर लो, मगर साथ ही साथ पीठ का बोझ हल्का रखो। लिहाजा अपनी पीठ पर ताकत से बढ़कर इतना बोझ ना लादना कि इसकी गिरां बारी तुम्हारे लिए वबाले जान बन जाए। और जब तुम्हें कोई ऐसा फाका कश आदमी मिल जाए जो तुम्हारा सामान सफ़र क़यामत के दिन तक उठाए रखे, और कल जब तुम्हें उसकी ज़रूरत पड़े तो बिला कमुकास्त तुम्हारे हवाले कर दे, तो उसे गनीमत जानो और सामान उस पर लाद लो, और ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़्यादा राह तुम्हारी ताकत में हो उसके सुपुर्द कर दो, क्योंकि मुमकिन है कि वक्त निकल जाने पर तुम उस शख्स को ढूंढो मगर ना पा सको, और उस शख्स को गनीमत समझो जो तुम्हारी खुशहाली की हालत में तुमसे कर्ज मांगे ताकि तुम्हारी तंगदस्ती के दिन वापस अदा कर दे। और देखो, तुम्हारे सामने एक दुश्वार गुजार पहाड़ की चढ़ाई है जिसमें सबकसार का हाल गिरा बार से कहीं बेहतर होगा, और सुस्त रफ्तार की हालत तेज रफ्तार से बदतर होगी। और यह भी याद रखो कि इस चढ़ाई में तुम्हारा मुकाम नजूल लाजमी तौर पर जन्नत होगा या दोज़ख। लिहाजा उतरने से पहले जगह की तलाश कर लो, और डेरा डालने से पहले मंजिल को हमवार कर रखो, क्योंकि मौत के बाद ना तो खुदा की रजा जोई मुमकिन है, ना दुनिया की तरफ वापसी। और यकीन रखो कि जिसके कब्ज़े कुदरत में आसमान और ज़मीन के ख़जाने हैं, उसने तुम्हें दुआ करने की इजाज़त देकर दुआएं कबूल करने का जिम्मा ले रखा है, और हुक्म दिया है कि तुम उससे मांगो ताकि वो तुम्हें अता करे, और उससे रहम की दरख्वास्त करो ताकि वो तुम पर रहम करे। और उसने तुम्हारे और अपने दरमियान कोई हाजिब मुकर्रर नहीं कर रखा जो उस तक तुम्हारी रसाई ना होने दे, ना तुम्हें किसी ऐसे शख्स के सुपुर्द किया है जो उसकी बारगाह में तुम्हारी सिफारिश करे। अगर तुमसे कोई बुराई सरजद हो गई तो उसने तौबा से मना नहीं फरमाया, ना सज़ा देने में जल्दी की, ना अपनी तरफ रुजू करने पर तुम्हें शर्मसार किया, और उस मुकाम पर भी तुम्हें रुस्वा ना किया जहां तुम रुस्वाई के सजावार थे। और तुम्हारी तौबा कबूल करने के बारे में तुम पर कोई दबाव नहीं डाला कि जब तक ये शर्तें पूरी ना करो तौबा कबूल ना होगी। ना तुम्हारे गुनाहों का सख्ती से मुहासबा किया, ना अपनी रहमत से तुम्हें मायूस किया, बल्कि तुम्हारे गुनाह से बाज रहने को भी एक नेकी करार दिया। और इस तरह तुम्हारी एक बदी को एक, मगर तुम्हारी एक नेकी को 10 शुमार किया, और तुम्हारे लिए एक तो तौबा का दरवाज़ा खोल दिया, दूसरा कबूल माजरत का कि जो कुछ कहोगे हम पूरा पूरा सुनेंगे। चुनाचा जब भी तुमने उसे पुकारा उसने तुम्हारी पुकार सुन ली, और जब तुमने उसे राजो न्याज की बातें की तो उसे तुम्हारा राज मालूम हो गया, और अब तुमने अपनी हाजत उसकी बारगाह में पेश कर दी और अपना माज़ियुल ज़मीर उस पर खोल दिया, अपने गमो अंदों का उससे शिकवा और दुख दर्द दूर करने की दरख्वास्त की, और अपने कामों में उसी से मदद मांगी, और उसकी रहमत के खजानों में उन चीज़ों का सवाल किया जिनकी अता करने पर उसके सिवा कोई कादिर नहीं, मसलन मुद्दत उम्र में इजाफा, जिस्मानी सेहत और रिस्क की वुसअत। फिर इसी पर बस नहीं, तुम्हें इन चीज़ों का सवाल करने की इजाज़त देकर अपने खजानों की कुंजियां तुम्हारे ही हाथ में दे दी। चुनाचा जब चाहो दुआ के जरिए उसकी नेमत के दरवाजे खुलवा लो और उसकी रहमत की झड़ियां लगवा लो, मगर देखो दुआ की कबूलियत में देर हो जाए तो कहीं मायूस ना हो जाना, क्योंकि जैसी नीयत वैसी मुराद। और अक्सर औकात कबूलियत दुआ में ताख़ीर इसलिए कर दी जाती है कि यही ताख़ीर साइल के अजर को अजर अजीम और उम्मीदवार को मिलने वाली अता को अताए जजील बना दे। और बारहा ऐसा होता है कि तुम किसी चीज़ का सवाल करते हो तो फौरी तौर पर वो चीज़ तो नहीं मिलती, अलबत्ता जोद या बदीर इससे बेहतर चीज़ मिल जाती है, या तुम्हारे हक में यही बेहतर होता है कि वो चीज़ तुमसे रोक ली जाए, क्योंकि अक्सर औकात तुम ऐसी चीज़ें मांग बैठते हो अगर तुम्हें दे दी जाएं तो तुम्हारे दीन को तबाह कर दे। लिहाजा तुम्हारा सवाल ऐसी चीज़ों के बारे में होना चाहिए जिनका जमाल तुम्हारे पास रह जाए और उनका वबाल तुम्हारे सर से टल जाए।
اور یاد رہے کہ تم فقط آخرت، فنا اور موت کے لیے پیدا کیے گئے ہو، دنیا، بقا اور حیات کے لیے نہیں۔ تم در حقیقت ایک ایسی منزل میں قیام پذیر ہو جو سراسر ناپائیدار ہے، اور ایسے گھر میں مقیم ہو جس میں ضرورت سے زیادہ سامان ہی نہیں، اور وہ بھی آخرت کے لیے، اور ایسی راہ میں رواں ہو جو آخرت کو جاتی ہے۔ اور سچ پوچھو تو تم اسی موت کا بھگایا ہوا شکار ہو جس سے بھاگنے والا بچ کر جا ہی نہیں سکتا، اور لازمی طور پر وہ اسے پیچھے سے جا پکڑتی ہے۔ لہٰذا اس سے چوکنے رہو، مبادا کہ تمہیں عین اس حالت میں آ دبوچے جب تم ایسی برائی میں مبتلا ہو جس سے توبہ کرنے کے لیے تم نے اپنے نفس کو باتوں میں لگا رکھا تھا کہ ابھی بہت وقت پڑا ہے، جب چاہا توبہ کر لیں گے، تو وہ موت آ کر تمہیں اور تمہاری توبہ کے درمیان حائل ہو جائے، اور تمہیں اچانک اس وقت ہوش آئے جب ہلاکت کے منہ میں آ چکو۔ اے فرزند سعادت مند، موت کو اور اس کی منزل کو جس پر تمہیں اچانک اترنا ہے اور موت کے بعد جہاں پہنچنا ہے، اتنی کثرت سے یاد کرتے رہو کہ جب موت سر پر آ جائے تو تم نے اپنے بچاؤ کا سامان کر رکھا ہو اور اس کا سامنا کرنے کے لیے کمر کس رکھی ہو، اور ایسا نہ ہو کہ وہ اچانک حملہ کر کے تم پر غالب آ جائے۔ اور خبردار، اہل دنیا کو دنیا کی طرف سے لپکتے اور اس پر ان کی رال ٹپکتی دیکھ کر کہیں دھوکہ نہ کھا جانا، کیونکہ اللہ نے تمہیں دنیا کی حقیقت سے آگاہ کر دیا ہے، اور خود اس نے ادھر تو تم سے اپنی خوبیاں بیان کی، ادھر اپنی برائیوں کا پردہ تمہارے سامنے کھول دیا۔ اور یاد رکھو، دنیا دار در حقیقت بھونکنے والے کتے اور ایسے درندے ہیں جنہیں خون کی چاٹ لگی ہوتی ہے، ایک دوسرے پر تیوری چڑھائے غرار رہے ہیں، زبردست کو کھائے جا رہا ہے اور بڑا چھوٹے کو دبائے جا رہا ہے۔ کچھ تو اونٹ ہیں جن کے زانو بندھے ہوئے ہیں، اور کچھ ایسے شتر بے مہار ہیں جو زانو کی رسیاں توڑ کر آزاد ہو گئے ہیں اور غیر معروف راہوں پر چل نکلے ہیں۔ ایسے جانور ہیں جو ایک دشوار گزار وادی میں آفت رسیدہ چارہ چر رہے ہیں، نہ کوئی رکھوالا ہے جو ان کی دیکھ بھال کرے اور نہ کوئی چرواہا ہے جو انہیں چرائے۔ دنیا نے انہیں بھول بھلیاں کے راستے ڈال دیا ہے اور ان کی آنکھوں پر ایسی پٹی باندھ دی کہ انہیں راستے کا رہنما نشان نظر ہی نہیں آتا۔ چنانچہ وہ اس کے گمراہ کن وادیوں میں مارے مارے پھر رہے ہیں، اس کی نعمتوں میں غرق ہیں اور اسے اپنا رب بنا رکھا ہے، اسی لیے وہ بھی انہیں انگلیوں پر نچا رہی ہے، اور یہ بھی اس سے کھیل سمجھے ہوئے ہیں اور اس کے آگے کی منزل کو بھولے بیٹھے۔ ذرا ٹھہرو، اندھیرا چھٹ کر سویرا ہو جانے دو۔ ایسا دکھائی دیتا ہے جیسے قافلے اپنی منزل پر جا اترے ہیں۔ کیا بعید ہے کہ تیز رو مسافر انہی سے آ ملیں۔ اور سمجھ لو کہ جو شخص مرکب لیل و نہار پر سوار ہے وہ اگرچہ ٹھہرا ہوا ہے لیکن سواری کے ساتھ ساتھ چلتا جا رہا ہے، اور اگرچہ اپنی جگہ پر آرام سے بیٹھا ہوا ہے تاہم قطع مسافت کیے جا رہا ہے۔ اور یقین سے ذہن نشین کر لو، تم اپنی امیدوں کی انتہا کو نہیں پہنچ سکتے اور نہ اپنی مدت عمر کے حد سے آگے بڑھ سکتے ہو۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ تم اسی کی راہ پر چل رہے ہو جس سے پہلے لوگ گزر چکے ہیں، لہٰذا طلب کی رفتار دھیمی رکھو اور کسب معاش میں اعتدال سے کام لو، کیونکہ بس اوقات سارے کی طلب میں آدھا بھی ہاتھ سے جاتا رہتا ہے۔ چنانچہ ضروری نہیں کہ ہر طالب رزق کو رزق مل جائے، اور نہ یہ ضروری ہے کہ ہر اعتدال پسند محروم ہی رہے۔ اور اپنے نفس کو ہر غلط چیز سے بالا تر رکھو، اگرچہ تمہیں مرغوب چیزوں کی طرف لے جائے، کیونکہ پستی میں جتنی جان کھپاؤ گے اس کا عوض مانگو گے بھی تو نہیں ملے گا، اور جب خدا نے تمہیں آزاد قرار دے رکھا ہے تو کسی دوسرے کے غلام مت بنو۔ اس بھلائی کا کیا فائدہ جو برائی کے بغیر حاصل نہ ہو سکے، اور وہ آسودگی کس کام کی جو تنگی کاٹے بغیر نہ مل سکے۔ اور خیال رکھنا کہیں ایسا نہ ہو کہ لالچ کی سرپٹ سواریاں تمہیں ہلاک کے گھاٹ اتار دیں۔ اور اگر تم اتنی ہمت کر سکتے ہو کہ تمہارے اور اللہ کے درمیان کوئی اور ولی نعمت نہ ہو تو ضرور کرو، کیونکہ اپنی قسمت تو بہرحال تم پا ہی لوگے، اپنا حصہ لے ہی لوگے، اور اللہ کا تھوڑا دیا بھی مخلوق کے کثیر دین سے عظیم تر اور افضل ہے۔ اگرچہ دونوں صورتوں میں دینے والا ہی اللہ ہے، اور خاموشی کے وقت خاموش نہ رہنے کی تلافی تو آسان ہے، مگر بولنے کے موقع پر نہ بولنے کا تدراک اتنا آسان نہیں ہے۔ برتن کے اندر کی چیز کی حفاظت برتن کا منہ باندھنے سے ہوتی ہے، بنسبت اس چیز کی طلب کے جو دوسروں کے ہاتھ میں ہو۔ تمہارا اس چیز کو سنبھال کر رکھنا جو تمہارے ہاتھ میں ہے مجھے زیادہ پسند ہے۔ نا امیدی کی تلخی لوگوں کا دس نگر ہونے سے بہتر ہے، ہاتھ کی کمائی اور پارسائی کا ساتھ مالداری اور بدکاری کے ساتھ سے بہتر ہے۔ ہر شخص اپنے راز کا بہتر محافظ ہے۔ بعض اوقات کوشش کرنے والا فائدے کے بجائے نقصان کا سامنا کرتا ہے، جو زیادہ باتیں کرتا ہے وہی تباہی بکنے لگتا ہے، اور جو سوچ وچار کرتا ہے حقیقت تک پہنچ جاتا ہے۔ نیک لوگوں سے میل جول رکھو تاکہ انہی میں شمار ہونے لگو، اور بروں سے کنارہ کش رہو
कि उनसे लाताल्लुक हो जाओ। सबसे बुरा खाना वो है जिसका खाना हराम है, और बदतरीन जुल्म कमजोर का हक मारना है। जब बेजा नरमी का नतीजा सख्ती हो तो सख्ती ही नरमी है। कभी कभी दवा बीमारी और बीमारी भी दवा बन जाती है, और कभी बदअंदेश भी खैर ख्वाही कर गुजरता है, मगर जिसे खैर ख्वाह बनाया होता है वो धोखा दे जाता है। और खबरदार आरजुओं का सहारा ना लेना, क्योंकि वो तो फकत अहमकों की जन्नत होती है। अक्लमंदी तजर्बों का महफूज रखना है, और बेहतरीन तजर्बा वो है जो नसीहत आमूज हो। इससे पहले कि फुर्सत गमो अंदों की सूरत इख्तियार करे, इससे इस्तिफादा हासिल करने में देर ना करो। ज़रूरी नहीं कि हर तलबगार बामुराद ही हो और हर जाने वाला वापस आ जाए। खराबियों की एक खराबी ज़ादे राह को खो बैठना है और आगबत को बिगाड़ लेना है। हर काम का कोई ना कोई अंजाम है। जो तुम्हारा मुकद्दर है खुद तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। ताजिर खतरे मोल लेने वाला होता है। बास औकात थोड़ा बहुत की बनिस्बत ज्यादा बढ़ता है। कमजोर मददगार भला न बदगुमान दोस्त। जब तक जमाने की सवारी काबू में है खड़ी कर लो और नरमी से अपना काम ले लो। ज्यादा की उम्मीद में थोड़ी चीज को खतरे में ना डालो। होशियार रहो, हर धर्मी की सवारी को बेकाबू ना होने देना। जब भाई दोस्ती का रिश्ता तोड़ने लगे तो खुद जोड़ने पर आमादा हो जाओ, और जब वो रूगर्दानी करने लगे तो तुम मेहरबानी से गले लगाने के लिए तैयार हो जाओ। जब वो बुखल पर उतर आए तो तुम खुले हाथों खर्च करने पर माइल हो जाओ। वो दूर होने लगे तो करीब होने की तैयारी कर लो। उसकी सख्ती के वक्त नरमी और उसके इर्तिकाब जुर्म के वक्त उज़्र ख्वाही से दरीग न करो, यहां तक कि गोया तुम उसके गुलाम और वो तुम्हारा वली नेमत हो जाए। मगर ख्याल रखना कि ये बर्ताव बेमहल ना होने पाए, या ऐसा ना हो कि तुम किसी को कभी दोस्त ना बनाओ, वरना दोस्त के दुश्मन बन जाओगे। अपने दोस्त भाई की बेला खैर ख्वाही करो, चाहे तुम्हारी बात उसे अच्छी लगे चाहे बुरी। गुस्से का कड़वा घूंट पी जाओ, क्योंकि मैंने किसी घूंट को अजरोए अंजाम इससे शीरी तर और बिल्लिहाज नतीजा इससे लजीज तर नहीं पाया। और जो सख्ती से पेश आए तुम उसके सामने नरम हो जाओ तो वो भी यकीनन नरम पड़ जाएगा। दुश्मन पर एहसान करके उसका हाथ रोक दो, क्योंकि फतह बराए इंतकाम और फतह बजरिया एहसान, दो फतों में से ज्यादा मीठी फतह तो यही है। अगर तुम अपने दोस्त भाई से ताल्लुकात तोड़ना चाहते हो तो ऐसा करने से पहले उसके लिए अपने दिल में इतनी जगह रहने दो कि अगर किसी दिन वो बेहतर समझे तो उसके रुजू करने के लिए तुम्हारे दिल में गुंजाइश हो। जो शख्स तुमसे हुस्ने जन रखे उसके हुस्ने जन को सच्चा कर दिखाओ। बाहमी अखोत का सहारा लेकर अपने भाई की हक तलफी मत करो, क्योंकि वो तुम्हारा भाई ही नहीं जिसकी तुमने हक तलफी कर ली। और देखो, तुम्हारे एलो हयाल तुम्हारे हाथों दुनिया भर में सबसे ज्यादा बदनसीब ना होने पाए। जो तुमसे पीछा छुड़ाए उसके पीछे मत पड़ो। तुम्हारे भाई में तुमसे ताल्लुकात तोड़ने की इतनी कुव्वत नहीं होनी चाहिए जितनी तुम में से उनसे ताल्लुकात जोड़ने की हो। और उसकी बुराई का जोर तुम्हारे एहसान के जोर पर गालिब नहीं आना चाहिए। और जो तुम पर ज्यादती करे उसकी ज्यादती तुम्हें गिरा ना गुजरे, क्योंकि वो असल में अपने नुकसान और तुम्हारे नफा के लिए दौड़े धूप कर रहा है। और जो तुम्हें खुश करे उसका बदला ये नहीं कि तुम उसे रंजीदा करो। और समझो ए जाने पिदर कि रिस्क दो हैं, एक वो रिस्क जिसकी तलाश तुम करते हो, दूसरा वो रिस्क जो तुम्हारी तलाश करता है। सो अगर तुम उस तक ना पहुंचे वो तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। कितना बुरा है तंगदस्ती के वक्त आजिज़ी दिखाना और अच्छे हालात के दिनों में आपे से बाहर हो जाना। दुनिया में तुम्हारा सिर्फ उतना हिस्सा है जिससे अपना मुकाम आखिरत संवार लो। और अगर हाथ से निकल जाने वाली हर चीज पर हाय वाय करते हो तो हर उस चीज पर भी आओजारी करो जो तुम्हें मिली ही नहीं। जो हो चुका है उसे दलील बनाओ उसकी जो अभी नहीं हुआ, क्योंकि अजवाए वकू सब मामलात एक जैसे हैं। उस शख्स की मिसाल ना बनना जिस पर नसीहत उस वक्त तक कारगर नहीं होती जब तक उसे मार मार कर समझाया ना जाए, क्योंकि अक्लमंद को तो इशारा ही काफी होता है। मगर लातों के भूत बातों से नहीं मानते, जानवर मारे बगैर नहीं मानते। सर पर आने वाले गमो अंदों का बोझ मुस्तकिल मिजाजी और हुस्ने यकीन की मदद से उतार फेंको। जिसने म्याना रवि को छोड़ा वो सीधी राह से हट गया। हम नशीन से अजीजों जैसा सलूक किया जाता है। दोस्त वो है जो पास ना हो तो भी वो दोस्ती का हक अदा करे। हवस जिल्लत की सांझी है, बस औकात अपना बेगाने से भी दूर तर हो जाता है, और कभी कभी बेगाना अपने से भी करीब तर हो जाता है। गरीब परदेसी वो है जिसका कोई दोस्त ना हो। जो हक की हद से आगे बढ़ता है उसका रास्ता तंग हो जाता है। जो अपनी कदर पर इक्तिफा करता है उसकी इज्जत बरकरार रहती है। जितनी रस्सियां तुमने थाम रखी हैं उनमें सबसे ज्यादा मजबूत रस्सी वही है जो तुम्हारे और अल्लाह के दरमियान है। जो तुम्हारी परवाह ना करे वो तुम्हारा दुश्मन है। जब तमाम मौजिब हलाकत हो तो मायूसी मुराद तक पहुंचा देती है। जरूरी नहीं कि हर पर्दा खुल ही जाए और हर फुर्सत से फायदा ही उठाया जाए। बस औकात आंखों वाले का निशाना चूक जाता है
اور اندھے کا تیر نشانے پر جا بیٹھتا ہے۔ بدی کے ارتکاب میں دیر کرو کیونکہ جلدی تو جب چاہو کر سکتے ہو۔ جاہل سے تعلق توڑنا عقل سے رشتہ جوڑنے کے برابر ہے۔ جو زمانے پر اعتماد کر کے مطمئن ہو جاتا ہے، زمانہ اسی کے لیے بے وفائی کرتا ہے، اور جو اسے بڑا مقام دیتا ہے اس کو وہ حقیر کر دیتا ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر تیر انداز کا تیر نشانے پر لگے۔ سلطنت بدلتی ہے تو زمانہ بدل جاتا ہے۔ راہ سے پہلے ہموار اور گھر سے پہلے ہمسایہ تلاش کرو۔ دیکھو اپنے کلام میں ہنسی کی بات کا ذکر تک نہ لانا، اگرچہ دروغ برگردانے راوی کی حیثیت سے ہو۔ خبردار عورتوں سے مشورہ نہ لینا کیونکہ ان کی عقل کمزور اور ارادہ سست ہوتا ہے، اور انہیں پردے میں پابند کر کے ان کی آنکھوں پر پہرا بٹھا دو، کیونکہ پردہ جتنا سخت ہوگا ان کی آبرو اتنی محفوظ رہے گی، اور ان کا گھر سے نکلنا اتنا خطرناک نہیں جتنا کسی ناقابل اعتماد غیر محرم کو ان کے گھروں میں جانے دینا۔ اور اپنی طاقت بھر کوشش کرو کہ تمہارے سوا کسی غیر محرم سے ان کی جان پہچان نہ ہونے پائے، اور عورت کو اس کے ذاتی امور کے علاوہ دوسرے معاملات میں منمانی مت کرنے دو، کیونکہ عورت ایک پھول ہے، کار فرما نہیں۔ اس کی واجبی عزت سے آگے نہ بڑھو، اور اسے اتنا سر نہ چڑھاؤ کہ وہ اپنے غیر کی سفارش کرنے لگے۔ اور دیکھو عورت پر بیجا بدگمانی کا اظہار نہ کرنا، کیونکہ یہ بدگمانی نیک چلن عورت کو بد چلنی اور پاک دامن کو آلودگی کی دعوت دیتی ہے۔ اور اپنے خدمتگاروں میں سے ہر ایک کے ذمے ایک کام لگا دو جس کا مواخذہ اسی سے کرو، کیونکہ یہی طرز عمل ہے جس سے وہ تمہارے کاموں میں ایک دوسرے پر بھروسہ نہیں کریں گے۔ اور اپنے قوم قبیلے کی عزت کرو کیونکہ وہ تمہارے پروبال ہیں جن سے تم پرواز کرتے ہو، وہ تمہارے اصل ہیں جس کی طرف تم رجوع کرتے ہو، اور وہی تمہارا ہاتھ ہے جس سے تم حملہ کرتے ہو۔ لو تمہارے دین و دنیا کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں کہ حال و استقبال اور دنیا و آخرت میں تمہارے لیے بہتری کے احکام صادر فرمائے۔ والسلام۔